So we have covered all these basic parts, meaning scope and traditional modern activities. I think हम लोग यहाँ पे थे ना, नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटीज हम लोग कर रहे थे. नॉन फंड बेस्ड भी शायद हम लोगों ने स्टार्ट करी हुई थी. सो फार आई रिमेम्बर हमने आई थिंक एक और नहीं 2-3 किए हैं. Let me come to that page. So these are yes, so these are non-fund based activities. The first one was issue management. अभी आवाज आ रही है? अभी ठीक है आवाज? कि स्लो आ रही है? Yes, आवाज आ रही है? Yes, ma'am. तो पहला हमने किया था इशू मैनेजमेंट, सेकंड किया था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट काउंसलिंग किया था, ओके, लोन सिंडिकेशन भी किया था, मर्जर्स एंड एक्विजिशन हो गया था. इसमें हमको आई थिंक वैराइटीज ऑफ मर्जर्स करना था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. देखो ये नहीं भी करेंगे ना तो चलेगा, बट स्टिल इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ the types of mergers, I will. See, there are different types of mergers. The first one is horizontal merger. Horizontal means same product line. Remember, every time when there is horizontal merger. So what is horizontal? See, suppose you have you have a company in which you manufacture a product which is a car, which is a car. I also manufacture a product which is known as car. So we both have same product. So because we have a same product and we come together and we merge with each other. We merge with each other. That type of merger is known as horizontal merger. Okay, two companies merging together and they have same product line. Okay, I mean if you are producing car, I am also producing car. Therefore, such companies when coming together, they merge together, they work together, are known as horizontal merger. ठीक है? अब आ जाओ vertical पे. Vertical means you have a different company, I have a different. You have a different product, I have a different product. But in some sense it would be related. Yes, Shivani said horizontal mergers example is Hero Honda. So Hero and Honda both were into car manufacturing. Okay, now vertical. So somewhere your product would be related to mine, but it would not be completely same. Now think of a cone supplier merging with an ice cream maker. So, a company who is making cones, okay, and another company who is making ice cream are merging together. So that becomes vertical merger. Vertical means you are producing something else different from my what I am producing. Now, congeneric mergers. What is congeneric mergers? Two business that serves the same consumer base. See, um, हम जो जो कस्टमर्स को हम फोकस करते हैं ना, उन्हीं सेम कस्टमर्स को आप भी फोकस करते हो इन द डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से. सच एज टीवी मैन्युफैक्चरर एंड अ केबल कंपनी. मतलब आप समझो अब एक कस्टमर है जो मुझसे टीवी खरीद के गया. एग्जाम्पल,
एक कस्टमर है जो मुझसे टीवी खरीद के गया, अब मेरी कंपनी अलग है, टीवी बेचती हूँ मैं, ठीक है, लेकिन जब तक टीवी में केबल कनेक्ट नहीं कराएंगे, जब तक टीवी में डिश टीवी कनेक्ट नहीं करेंगे, क्या वो टीवी काम करेगी? क्या वो टीवी खरीदना वर्थ है? नहीं। आई बात समझ में? मतलब टीवी के साथ साथ आपको क्या चाहिए? केबल, केबल कनेक्शन चाहिए, लाइक यस, मोबाइल के साथ सिम कार्ड चाहिए. सो व्हेन यू बाय मोबाइल, you have to approach to another company known as SIM card. Somebody who can give you a SIM card. To that same company you have to approach. So buying a mobile is from one company and approaching for SIM card, going for a SIM card is from the another company. Therefore, the customer is same, but the products which I am buying are I mean they are in supporting to each other. They are supporting each other. Otherwise, one product is not sufficient. You will have to buy the another product also to complete the first, to complete the nature and characteristics of first product. ठीक है, समझ आ रहा है? आवाज आ रही है? ठीक है, आवाज आ रही है? ओके, ओके. नाउ conglomeration. What is conglomeration? कॉन्ग्लोमेरेशन क्या होता है? जहां बिल्कुल कॉमन एरिया नहीं हो, आपका बिजनेस बिल्कुल अलग, आपका बिजनेस है सैलून, समझो एग्जांपल सैलून, और मेरा बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है. अब इससे कोई लेना देना है? बिल्कुल नहीं. बिल्कुल दोनों बिल्कुल अलग एरिया. ऐसे बिजनेस जब साथ में आकर काम करते हैं, दे मर्ज टुगेदर टू वर्क टुगेदर. Such businesses are, such mergers are known as conglomeration. The conglomeration means those mergers which have no common business areas. Those companies coming together that have no common business areas. ठीक है? आई थिंक ये पढ़ने की जरूरत नहीं है. बाकी इतना कुछ बताने की जरूरत नहीं. परचेज मर्जर तो कॉन्ग्लोमेरेशन के अंदर आता है, वो इतना बताने की जरूरत नहीं. परचेज मर्जर क्या होता है? सामने वाली कंपनी को आपने खरीद कर उसको उसको जो उस कंपनी का पेमेंट था उसको दे दिया और मर्ज हो गया. तो वो आपको नहीं पढ़ना, बस हो गया. टाइप्स आपको पढ़ने थे. कौन से टाइप्स थे? हॉरिजॉन्टल means same product line, vertical means different product line, conglomeration means targeting same customers in different ways, conglomeration means altogether different businesses. कोई भी सेम, कुछ भी सेम नहीं. अब स्टॉक ब्रोकिंग, आपको तो बताइए स्टॉक ब्रोकिंग क्या होता है. स्टॉक ब्रोकिंग इज रेगुलेटेड प्रोफेशनल इंडिविजुअल यूजुअली एसोसिएटेड विद ब्रोकिंग फर्म. अब स्टॉक ब्रोकर कौन होता है? ब्रोकर बंदा वो होता है, एक प्रोफेशनल इंडिविजुअल होता है जो ब्रोकिंग फर्म में काम करता है एज अ ब्रोकर. ब्रोकरेज फर्म में काम करता है एज अ ब्रोकर. उसका काम क्या होता है? who buys and sells stock and other securities for both. वो क्या करता है? स्टॉक्स को बेचता है, खरीदता है. स्टॉक्स मतलब सिक्योरिटीज को बेचता और खरीदता है. फॉर बोथ रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स. अब रिटेल और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स में क्या फर्क है? रिटेल मतलब उसके खुद के, मतलब सिंगल इंडिविजुअल, ठीक है. इंस्टीट्यूशनल मतलब कॉर्पोरेट क्लाइंट. समझ आया? रिटेल मतलब जो मेरे साथ डील कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स. लाइक मैं गई और स्टॉक ब्रोकर से बात करके आई और मैंने स्टॉक खरीदा, फिर वो मुझे बेच कर देगा राइट टाइम पे, राइट प्लेस में, राइट अर्निंग्स करके, अच्छा खासा अर्निंग्स देकर. ठीक है, ही विल डील ऑन बिहाफ ऑफ मी. ठीक है. तो मैं गई तो मैं उसके लिए रिटेल कस्टमर. बट अगर कॉर्पोरेट कंपनी उसके पास जाएगी और बोलेगी मेरे बिहाफ पे स्टॉक एक्सचेंज में आप शेयर खरीदो और बेचो, तो वो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट हो जाएंगे उसके. ठीक है, थ्रू अ स्टॉक एक्सचेंज. ये जो बाय और सेल करता है वो हमारे लिए
वो कहाँ करता है? ओवर द काउंटर. ओवर द काउंटर मीन स्टॉक एक्सचेंज. मतलब ये जो स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट बना हुआ है, वर्चुअल मार्केट, जिसमें स्टॉक्स को खरीदा और बेचा जाता है. समझ आ रहा है आपको? इन द रिटर्न फॉर फीस और कमीशन. ये सबको पता है स्टॉक ब्रोकिंग क्या होती है. तो आप जब भी आपके लिए कोई स्टॉक खरीदता है, बेचता है, जो ब्रोकर होता है उसको आप क्या देते हो? अगर आपने कमाया कुछ तो आप उसको क्या दोगे? उसमें से कुछ फीस और कमीशन देते हो. सो स्टॉक ब्रोकर्स आर नोन बाय न्यूमरस प्रोफेशनल डेजिग्नेशंस. उनको बहुत सारे प्रोफेशनल डेजिग्नेशन से जाना जाता है, डिपेंडिंग ऑन द लाइसेंस दे होल्ड. लेकिन ये जरूरी है कि उनके पास क्या होना चाहिए? लाइसेंस. And based on that license, their professional designation is decided. The type of security they sell, services they provide, everything is dependent on the license they hold. समझ आया? तो ये होता है आपका स्टॉक ब्रोकिंग. ठीक है, ये आपको पता है अच्छे से स्टॉक ब्रोकिंग क्या होता है. हो गया. मतलब नॉन फंड बेस्ड की एक्टिविटीज आपकी हो गई. लेट मी कम टू माय पीपीटी वंस अगेन. देखो, अब हमने यहाँ पे किया था फी बेस्ड. फी बेस्ड मतलब नॉन फंड बेस्ड, एक ही बात है. क्या क्या कवर किया हमने इसमें? इशू मैनेजमेंट कवर किया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट काउंसलिंग कर लिया, मर्चेंट बैंकिंग. आई थिंक ये नहीं किया है ना. ठीक है, मैं करवाती हूँ ये. क्रेडिट रेटिंग. क्रेडिट रेटिंग वो कंपनीज होती हैं, ध्यान से सुनो. स्टॉक ब्रोकिंग हो गया ना, अब क्रेडिट रेटिंग देखो. क्रेडिट रेटिंग वो कंपनीज होती हैं जो आपकी कंपनी को क्रेडिट्स देती है. आपके कंपनी की परफॉर्मेंस को चेक करके, आपके कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके, आपके कंपनी के प्रॉफिट्स, इनकम्स, एक्सपेंसेस को चेक करते हुए आपका परफॉर्मेंस कैसा था वो चेक करके आपको क्या कहते हैं, रेट करती है. यस, ग्रेडिंग देती है. ठीक है. अब जब ग्रेड देती है तो कैसे ग्रेड्स देती है? ए प्लस, ए प्लस प्लस, बी प्लस, B1, आई मीन बी. समझ आ रहा है? तो क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या होता है? क्रेडिट रेटिंग मीन्स दोज कंपनीज विच रेट द परफॉर्मेंस ऑफ अदर कंपनीज. जैसे क्रिस्टल कंपनी, आपको पता है क्रिस्टल केयर. एक कंपनी है क्रिस्टल, दूसरी कंपनी केयर. ये ऐसी कंपनीज हैं जो बाकी की कंपनीज के परफॉर्मेंस को देखकर उनको जज करती हैं, उनको रेट देती हैं. एंड बेस्ड ऑन दैट रेट द गुडविल इज डिसाइडेड. समझ आ रहा है? आपकी कंपनी का ए प्लस प्लस रेट है तो गुडविल अपने आप मार्केट में दिखने लगेगी. ठीक है. क्रिस्टल कंपनी आपको पता होगा, अच्छे से पवाई पे भी है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. डेटा एंड कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? ये वही है रीस्ट्रक्चरिंग. रीस्ट्रक्चरिंग मीन्स आपका कैपिटल जो है उसमें इक्विटी कभी ज्यादा है, कभी डेट ज्यादा है, तो उसको वापस से रीस्ट्रक्चर करना और वापस से उस पोजीशन पे लेके आना जहाँ पे मेरा डेट एंड कैपिटल दोनों बैलेंस होके चलते हैं. तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अभी फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड के ये डिफरेंसेस हैं. मतलब ये जो मैंने पॉइंट्स लिखी है ना, ये बेसिकली आपको क्या बताती है? डिफरेंस बिटवीन फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड. देखो, फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज इन्वॉल्व्स क्रेडिट ऑफर्ड बाय बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, ओवरड्राफ्ट्स एंड कैश ट्रांजैक्शंस. अगर हम देखते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज को जो फंड बेस्ड होती है, उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? लोन मतलब कैश, ओवरड्राफ्ट मतलब कैश, एंड अदर कैश ट्रांजैक्शन मतलब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश इज देयर. Whereas in non-fund based, bank does not deal with the funds or cash transactions. देखो क्लियरली लिखा हुआ है. इसमें इसमें फंड्स और कैश के साथ डायरेक्टली डील नहीं किया जाता है.
इसमें सर्विसेज होती हैं, आपको सर्विसेज मिलती हैं, उसके अगेंस्ट में बैंक आपसे फीस और कमीशन चार्ज करती है। सम एग्जांपल्स ऑफ सच सर्विसेज आर, जैसे आपको बॉन्ड्स इशू करके देना, लेटर्स ऑफ गारंटी, गारंटी देना कि हाँ ये मेरे बिहाफ पे आप कर सकते हो काम, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सब आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट देखो, मतलब फर्स्ट पॉइंट में से क्या हाईलाइट किया है कि फंड बेस्ड में कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं और नॉन फंड बेस्ड में डायरेक्ट कैश इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। सेकंड पॉइंट है फंड बेस्ड में मनी in the form of cash is involved, and in second fee based में no money is directly involved, but subscribing bank or financial institutions provide financial services to the customers, मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, उनके बिहाफ पे रिस्क लेते हैं और उसके अगेंस्ट में आपसे फीस चार्ज करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट भी घूम फिर के वही आ रहा है, पर उन्होंने अलग तरीके से उसको पिक्चर भी दिखाया है। अब थर्ड देखो, थर्ड में क्या बोल रहा है, फंड बेस्ड मीन्स डीलिंग विद एक्चुअल कैश, लाइक अब ये एक्चुअल कैश से डील करते हैं। क्या एक्चुअल कैश में क्या क्या हो सकता है, कैश क्रेडिट मतलब लोन दे देना कैश में, टर्म लोन दे देना एक्सेट्रा। वेयर इज फी बेस्ड में ओनली सर्विसेज लाइक इंश्योरेंस, बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, इशू मैनेजमेंट एक्सेट्रा आर इन्वॉल्व। ठीक है, मतलब उसने क्या बताया है कि डायरेक्ट कैश इन्वॉल्व नहीं होता है। अब आ जाते हैं सोर्सेस पे, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, मतलब इसका मतलब क्या है, जब हम क्या कहते हैं, जब हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास सोर्स किधर से आता है, हमारे पास उतना अमाउंट ऑफ मनी कहाँ से आता है जो हम पे कर सकें, कहाँ से आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन्स। अब बैंक है ना लोन देती है, देखो ध्यान से सुनो, बैंक है ना इंडस्ट्रीज को, कॉरपोरेट्स को, बड़ी बड़ी कंपनीज को, इंडिविजुअल्स को लोन देती है। ठीक है, एडवांस देती है। अब उस लोन में से वो क्या अर्न करती है, इंटरेस्ट, और वो तो इंटरेस्ट है जो वो कमाती है, उसके लिए इनकम का सोर्स है वो ही तो इनकम है जिसमें से आपको आगे चल के वो आई मीन कैश के फॉर्म में लोन दे सकती है। दैट इज द इनकम दे अर्न आउट ऑफ लोन्स गिवन टू corporates, individuals, industries, etc. Why do they do that? मतलब क्यों वो लोन देते हैं आपको, क्योंकि दे अर्न इंटरेस्ट फ्रॉम दैट। समझ आ रहा है, तो उनके लिए रेवेन्यू मतलब कमाने का सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ से वो अर्न कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, अब बैंक ने क्या किया, अपने बहुत सारे जो असेट्स थे वो बेचकर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया, मतलब शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स के फॉर्म में इन्वेस्ट कर दिया। अब शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स में से भी क्या मिलता है उनको, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। जब हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है ना। तो बैंक भी तो इन्वेस्ट करती है, गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स खरीद के रखती है, तो उसमें से गवर्नमेंट बैंक को क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। फी इनकम, फी इनकम क्या होता है, फी इनकम क्या होता है, अगर आपने किसी को सर्विस दिया, समझो कौन सा सर्विस दिया, सिंडिकेट लोन सिंडिकेशन, तो उसके अगेंस्ट ये नॉन फंड बेस्ड है, तो जब जब नॉन फंड बेस्ड होता है तो बैंक क्या अर्न करती है, फीस। आपने किसी को लॉकर फैसिलिटी दे दी, तो आप लॉकर फैसिलिटी दे रहे हो, आप किसी को लोन थोड़ी दे रहे हो। लॉकर फैसिलिटी किस में आ जाता है, नॉन फंड बेस्ड में। तो उसके अगेंस्ट में आप सामने वाले कस्टमर से क्या चार्ज करोगे, फीस। समझ आ रहा है, हाँ समझ आ रहा है कि नहीं। तो आपने क्या चार्ज किया यहाँ पे, फीस, तो आपके पास फीस भी तो आई एज एन इनकम। अच्छा नेक्स्ट, फॉरेक्स, फॉरेक्स ऑपरेशंस मतलब फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन। आपके पास एक कस्टमर आया, आपको बोलता है कि मुझे ना रुपीस बेचकर डॉलर खरीदने हैं, पर आप नॉलेज उसको नहीं है, नॉलेज आपको है, वो बैंक के पास आया है। ठीक है, तो आप उसके बिहाफ पे नंबर ऑफ लाइक सर्टेन अमाउंट आप उससे लेकर उसके अगेंस्ट में आई मीन उसके बिहाफ में डॉलर्स खरीदेंगे। ठीक है, तो आप एज एन ब्रोकर, ब्रोकर डील कर रहे हैं उसके साथ, एज एन ब्रोकर एक्ट कर रहे हैं उसके साथ।
therefore you earn foreign exchange. I mean, therefore you earn commission from that particular operation of foreign exchange. ठीक है, कमीशन मिलेगी ना आपको, उसके बेसिस पे ब्रोकर को क्या मिलती है, कमीशन, फीस, वो भी तो इनकम हो गया ना आपके लिए। तो हम वही तो पढ़ रहे हैं, सोर्सेस ऑफ इनकम, कि बैंक अगर फाइनेंशियल सर्विसेज देती है तो उसके लिए उनको इनकम का सोर्स क्या क्या होता है। कमीशन ऑन थर्ड पार्टीज प्रोडक्ट, मतलब समझो, अब समझो बैंक, आपने देखा है आजकल बैंक्स के साथ बैंक के साथ इंश्योरेंस कंपनी आके बैंक के कस्टमर्स को मोटिवेट करती है कि हमारी इंश्योरेंस कंपनी में आप प्रोडक्ट खरीदो। देखा है आपने, बैंक्स के अंदर ही जो बैंक्स के कस्टमर्स होते हैं, समझो मैं बैंक में गई, बैंक में विजिट किया, अब है ना, एक मार्केटिंग का बंदा बैठा हुआ होगा और मुझे बोलेगा मैं इंश्योरेंस कंपनी से हूँ और आप मेरी इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदो, बहुत अच्छा है। म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट खरीदो, बहुत अच्छा है। हाँ, इसको बोलते हैं बैंक इंश्योरेंस। मतलब बैंक ने इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप करके सेम कस्टमर्स को टारगेट करना चाहते हैं वो लोग, so that to increase the insurance of इंश्योरेंस कंपनी का प्रोडक्ट, उनकी पॉलिसीज को बढ़ाना है, उनको बेचना है। ठीक है, तो बैंकिंग के कस्टमर्स को टारगेट करते हैं वो, कोई नए प्रोडक्ट्स, आई मीन जो नए कस्टमर्स है उनको नहीं ढूंढते हैं वो लोग, खुद कस्टमर्स रेडी है ना, बैंक में तो आएंगे ही कस्टमर, उनको हम मोटिवेट कर लेंगे। हाँ, रेडी कस्टमर्स बैठे हैं। ठीक है, बस उनको एक रास्ता दिखाना है कि आपने ना इंश्योरेंस खरीदना चाहिए, ये इंश्योरेंस खरीदना चाहिए, आपके बच्चों के लिए खरीदना चाहिए। ठीक है, तो बैंक इंश्योरेंस कंपनी से उसके लिए कमीशन लेती है, क्योंकि क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने बैंक का कस्टमर लिया ना अपने पास। बेशक उसका बैंक का कोई नुकसान नहीं होगा, पर बैंक इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दे रही है, अपने कस्टमर्स दे रही है। अपने कस्टमर्स किसी को देना इज ऑल्सो अ बिजनेस। सामने वाले को आप बिजनेस करके दे रहे हो, तो सामने वाले को आप बिजनेस करके दोगे तो भी तो आप उनसे कमीशन लोगे ना। सो दिस इज द सेम केस। ठीक है, so there were 5 sources through which income is generated. Okay, now we have innovative financial instruments. Innovative financial instruments, अब ये क्या क्या है, अब इनको है ना हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जो मैंने इतना डिटेल में लिखा हुआ है यहाँ पे आप लोगों के लिए, ये बस ऐसे ही रीड करने के लिए, एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं आएगा। याद करता है तो ठीक, नहीं तो सिर्फ नाम भी इम्पोर्टेंट है, चलेगा। क्योंकि अगर शॉर्ट नोट आ भी गया, लिस्ट डाउन द इनोवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, तो कैसे आपको ये शॉर्ट नोट लिखना है, पता है आपको कैसे लिखना है? पहले तो आपको बताना है कि फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज का दे आर डेल्ट विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, कि जब तक आपके पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होंगे आप सर्विसेज दे ही नहीं पाओगे। तो पहले मीनिंग लिखनी फाइनेंशियल सर्विसेज की, फिर बताना है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, और फिर वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को लिस्ट डाउन करना है। हो गया आपका शॉर्ट नोट। ठीक है, तो इनोवेटिव मतलब जो अभी अभी न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो मार्केट में आए हैं ना, वो क्या क्या है। देखो, सबसे पहले कौन से हैं, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। हाँ, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। अब पहला क्या है, डी सॉरी ट्रिपल ऑप्शन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, टी, इसको बोलते हैं टीओसीडी। टीओसीडी क्या होता है, सबसे पहले तो ये रिलायंस पावर लिमिटेड ने इशू किया था। ठीक है, नो आउटफ्लो ऑफ इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट 5 सालों तक आपको कुछ नहीं मिलता है, इसमें से इंटरेस्ट नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता, इक्विटी के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसमें बेचने का ऑप्शन नहीं होता है, नो पुट ऑप्शन। पुट मीन्स सेल, बाय मीन्स कॉल मीन्स बाय। आपने ये डेरिवेटिव्स में पढ़ा होगा, पढ़ा है, कभी सुना है ये, पुट एंड कॉल। पुट एंड कॉल, पुट मतलब सेल, कॉल मतलब बाय। ठीक है, नो पुट ऑप्शन मतलब आपको बेचने का ऑप्शन नहीं है। नो टेक ओवर थ्रेट, मतलब आपकी कंपनी को कोई खरीद नहीं सकता, आपके शेयर्स कोई टेक ओवर नहीं कर सकता। ठीक है, ये वैसे शेयर्स हैं, ये वैसे डिबेंचर्स हैं कि आपको इसमें बेचने का ऑप्शन भी नहीं है और ये टेक ओवर भी नहीं कर सकते हैं।
आगे चल के ये इक्विटी के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। अभी लिखा हुआ है इक्विटी इंक्रीज वाज इन फेजेस, ठीक है, आगे चल के ये इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। ऐसे ऐसे डिबेंचर्स को बोलते हैं TOCD, कन्वर्टेबल। देखो नाम ही इसका कन्वर्टेबल है ना। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मतलब ट्रिपल ऑप्शन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मतलब आपके पास ऑप्शन है फ्यूचर में आप डिबेंचर्स को इक्विटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, अब ये क्या है? ये वो बॉन्ड्स हैं जिसमें आपको टैक्स एडवांटेज मिलता है और री इन्वेस्टमेंट का रिस्क एलिमिनेट हो जाता है। री इन्वेस्टमेंट का रिस्क क्या होता है? जब हम बेच कर फिर चीज़ें खरीदते हैं, फिर बेच कर फिर चीज़ें खरीदते हैं, उसके बीच में जो रिस्क होता है ना, जो लॉस होता है, वो नहीं होता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसमें आपने जो बॉन्ड खरीदा है वो लोअर देन फेस वैल्यू खरीदा है और आपको फेस वैल्यू पे रिडीम होके मिलेगा। जब रिडम्पशन होगा तो फेस वैल्यू पे होगा। तो कॉमन सेंस से जो रिस्क है वो एलिमिनेट हो गया। मतलब आपको पता है कि मुझे इतना प्रॉफिट तो पक्का होना है, पक्का। समझो फेस वैल्यू था 100, खरीदा आपने 90 में, और जब बिकेगा ये, जब ये रिडीम होगा तब 100 पे बिकेगा, फेस वैल्यू पे बिकेगा। 90 की चीज 100 पे बिकेगी तो प्रॉफिट 10 रुपीज तो पक्का होगा ना। आई बात समझ में? तो रिस्क एलिमिनेट हो जाता है। मतलब इतना तो पक्का है कि इतना प्रॉफिट फॉर श्योर होगा ही। डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स मतलब स्टार्टिंग में जब वो इशू होते हैं ना तो डिस्काउंट पे इशू होते हैं। 100 की चीज 90 पे इशू हुई, तो मैंने 100 वाली चीज 90 में खरीदी लेकिन बेचूंगी तो 100 में, तो प्रॉफिट ही तो होगा मेरा 10 रुपए का। नहीं समझा? बड़ा सिंपल है। डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स सिंपल है, डिस्काउंट में खरीदना, फेस वैल्यू पे बेचना, इतना अमाउंट आपका प्रॉफिट, जिससे रिस्क एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, नीचे भी वही लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में, ठीक है। आगे बढ़े, देखो फ्लोटिंग रेट नोट्स। अभी फ्लोटिंग रेट्स नोट क्या, रेट नोट्स क्या होते हैं? टाटा सन्स ने सबसे पहले ये फ्लोअर रेट पे इशू किए थे। फ्लोर रेट पे क्या मतलब? फ्लोर रेट मतलब फ्लैट रेट। फर्स्ट रेट आपका क्या था? 12.5% विद अ कैप ऑफ 15.5%। तो मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम आप इसमें से कितना इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं? 15.5 विद अ कैप ऑफ, कैप ऑफ मीन्स मैक्सिमम इंटरेस्ट कैन बी अर्नड 15.5%, ठीक है। ये ट्रेजरी बिल्स के जैसे होते हैं। रेफरेंस रेट क्या है इनका? 364 टीबी। टी बिल मतलब ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। फ्लोटिंग रेट नोट्स होते हैं ये। सी इट इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जो टाटा सन्स ने शुरू किया था। लोगों ने खरीदे थे और उनके पास पैसे, मतलब अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट किया था टाटा सन के पास, और उन्होंने उनसे क्या खरीदा? फ्लोटिंग रेट नोट्स खरीदे और उनसे इंटरेस्ट अर्न करते थे वो 12.5%। समझा अभी? द इन्वेस्टर वुड गेट मिनिमम रिटर्न्स ऑन फ्लो रेट। आपको मिनिमम रिटर्न्स मिल रहे हैं इसमें से, लेकिन सेफ है ये, आपको कोई रिस्क नहीं है इसमें। मिनिमम रिटर्न्स ऑन फ्लो रेट एंड मैक्सिमम रिटर्न्स ऑन कैप रेट। जो 12, जो आपका मिनिमम सबसे कम रेट है फ्लोर रेट, वो आपका मिनिमम रिटर्न्स है, और जो मैक्सिमम है वो कैप रिटर्न्स है, मतलब 15.5। आई बात समझ में? they would get higher than flow rate depending upon the fluctuations in reference rate। अब मार्केट में जैसे जैसे फ्लक्चुएशन होगी रेफरेंस रेट की, मतलब टी बिल्स की रेफरेंस रेट क्या है मेरा? 364 टी बिल। तो 364 ट्रेजरी बिल्स की जैसे जैसे फ्लक्चुएशन होगी, इसकी भी फ्लक्चुएशन होगी। जैसे जैसे फ्लक्चुएशन होगी वैसे वैसे 12.5 से 15.5 के बीच में ये वेरी करेगा, इंटरेस्ट वेरी करेगा, चेंज करेगा, ठीक है। समझ आ गया सबको? आगे बढ़ते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं? वो बॉन्ड्स जिसपे इनिशियली जीरो कूपन होता है। इट डिड नॉट इन्वॉल्व एनी एनुअल इंटरेस्ट। मतलब कूपन मतलब इंटरेस्ट। कूपन का मतलब होता है बॉन्ड्स पे जो कूपन होता है ना, मतलब इंटरेस्ट जो हम अर्न करते हैं उसको कहते हैं कूपन। बॉन्ड्स के, जब हम बॉन्ड्स की बात करते हैं ना, जैसे डिवेंचर्स की बात करते हैं तो इंटरेस्ट होता है, लोन बैंक लोन की बात करते तो इंटरेस्ट होता है, जब हम इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं तो डिविडेंड होता है।
वैसे ही जब हम बॉन्ड्स की बात करते हैं तो हम क्या अर्न करते हैं? इंटरेस्ट। और उस इंटरेस्ट को इंटरेस्ट नहीं बोलते, कूपन बोलते हैं। या फिर बहुत लोग हैं ना, उसको कूपन इंटरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कूपन इंटरेस्ट। So it did not involve uh, any annual interest on the bonds, but it had a higher maturity value on the initial investment for a particular time period. मतलब जब आप देखो, इसमें ना आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है कभी भी। ये बॉन्ड्स पे आपको कूपन नहीं मिलेगा, हर महीने इंटरेस्ट जो आता है ना, हर साल, वो नहीं मिलेगा। तो फिर लोग खरीदते क्यों है ये बॉन्ड्स? क्योंकि जब हम बेचने जाते हैं ना, तो बहुत अच्छा खासा इसका वैल्यू होता है बेचने के टाइम पे, मैच्योरिटी वैल्यू। इसकी जो मैच्योरिटी वैल्यू होती है, रिडम्पशन की जो वैल्यू होती है, वो काफी ज्यादा कंपैरेटिवली दूसरे बॉन्ड से हायर होती है। समझो आपने 90 का बॉन्ड 110 में बेचा, तो 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ ना एक बॉन्ड पे। वेर एज नॉर्मल बॉन्ड होता तो 100 में बेचते थे। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो हाई होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। सिंपल है, बहुत इजी इजी पॉइंट है, इसलिए मैं ज्यादा उसको स्ट्रेच नहीं कर रही हूँ। कन्वर्टेबल एंड जीरो कूपन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। अब ये वो बॉन्ड्स होते हैं जिसमें इंटरेस्ट तो नहीं होता है, ठीक है, एक्सेप्ट दैट इफेक्टिव इंटरेस्ट वाज लोअर बिकॉज ऑफ कन्वर्टेबल। यानी कि ये कन्वर्टेबल हो सकते हैं। क्या कन्वर्टेबल कर सकते हो आप? अभी तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि आपका जीरो कूपन बॉन्ड है, लेकिन आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो कि अगर आपको अभी से इंटरेस्ट चाहिए उसमें, तो आप ऐसे बॉन्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हो जिसमें से आपको अभी हर महीने हर साल इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसको बोलते हैं कन्वर्टेबल जीरो कूपन बॉन्ड्स। ठीक है, मतलब जीरो कूपन बॉन्ड्स को नॉर्मल बॉन्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। उसको कहते हैं कन्वर्टेबल जीरो कूपन बॉन्ड्स। जैसे डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं ना, वैसे। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स। ये सब हम क्या कर रहे हैं? इनोवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे मैं फाइनेंशियल सर्विसेज डील कर सकती हूँ? फाइनेंशियल सर्विसेज हैं आपके पास, पर उसके लिए कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, तो आप, कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, तो आप सर्विसेज बेचोगे कैसे? कौन सी सर्विसेज के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए? कौन से इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए? ये वो इंस्ट्रूमेंट्स है जो आपको फाइनेंशियल सर्विसेज का बेस देती हैं। अगर ये नहीं होगा तो सर्विस दोगे कैसे? आप कौन सी सर्विस देंगे? These are the forms in which you can give the financial services. Secured premium notes. अब ये भी एक तरीके का, क्या कहते हैं इसको, जैसे ट्रेजरी बिल, सीओडी कैसे होते हैं, वैसे ये भी प्रीमियम नोट्स होते हैं। प्रीमियम नोट्स कौन से होते हैं? सिक्योर्ड। अभी जहाँ सिक्योर्ड वर्ड आ गया, ये सबसे पहले टिस्को कंपनी ने दिए थे। ठीक है, देखो याद पड़ता है तो ठीक है, लिखोगे तो बहुत अच्छा। कि जैसे अभी हमारा ये था टाटा कंपनी वाला फ्लोटिंग रेट नोट्स, ये टाटा सन्स ने निकाला था। सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स किसने निकाला था? टिस्को कंपनी ने। कब निकाला था वो छोड़ो, सबसे पहले किसने निकाला था? टिस्को कंपनी ने। अब जहाँ जहाँ वर्ड सिक्योर्ड आ जाए ना, सिक्योर्ड मीन्स गिरवी, कुछ ना कुछ आपने, अगर ये नोट खरीदा है, अगर आपने मेरे से ये इन्वेस्टमेंट खरीदी है, तो आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। समझ आ रहा है? आपकी कोई भी असेट आपको गिरवी रखनी पड़ेगी, घर के पेपर्स, कार के पेपर्स। ठीक है, these financial instruments were secured against the assets of the company, but the investors had a premium over the market price for these types of instruments. तो ये लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं इसमें? असेट्स को गिरवी रखकर ये नोट्स क्यों खरीदते हैं? क्योंकि इसमें आपको मार्केट प्राइस से ऊपर एक और अमाउंट आपको अर्न करने को मिलता है, जिसको बोलते हैं प्रीमियम। जब जब कंपनी अर्न करेगी ना, तब तब आपको उसमें से प्रीमियम मिलेगा। ये इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, सिक्योर प्रीमियम नोट से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इक्विटी विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। देखो, ये सबसे पहले टाटा मोटर्स ने इशू किया था। ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स की क्लासिफिकेशन के अंडर, मतलब इन्होंने नाम क्या दिया था? ऑर्डिनरी शेयर। इक्विटी विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट इसका नाम है इंस्ट्रूमेंट का। सबसे पहले टाटा मोटर्स ने इशू किया था। सबसे पहले जब उसने इशू किया था ना ऑर्डिनरी शेयर्स को,
तब 340 पर शेयर था, वर इशूड एट 340 रुपीज पर शेयर और हैड अ वोटिंग राइट ऑफ 1 वोट पर शेयर। आपके पास एक वोट होगा तो उतना राइट होगा, समझो 20%, एक वोट, एक शेयर पे 20% वोटिंग राइट है। चलो 2% वोटिंग राइट है, 2% एक शेयर पे। आपके पास 10 शेयर्स हैं तो आपके पास 20% वोटिंग राइट हो गया। मेरे पास 40 शेयर्स हैं तो मेरे पास 40 इंटू 2 80% वोटिंग राइट्स हैं, क्योंकि एक शेयर पे 2% है ना वोटिंग राइट्स।